اگر فردوس برروئے زمیں است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است. If there is paradise on the earth, it's here, it's here, it's here. تو سب سے پہلے یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم ریسنٹ کلنگس جو ہوئی کشمیر میں، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، شرما جی کلنگ ریسنٹلی جو ہوئی، یا کل ہی حال ہی میں کنن پوش پورہ میں ایک کلنگ ہوئی. تو آج کا جو مدعا ہے، آج کا جو ڈسکشن ہے وہ کشمیریت کو لے کے ہے. کشمیر جو ہے، چاہے ہم اذان کی خوبصورت آواز کی بات کریں، چاہے ہم مندر کی چہچہاتی گھنٹیوں کی بات کریں، یا ہم چرچ کی خاموشی کی بات کریں، کشمیر میں ہمیں سب دیکھنے کو ملتا ہے. کشمیر جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنے کشمیریت کے لیے کافی مشہور ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. میرے دائنی طرف ایک شخص ہے، ان کی اوپینین لیں گے کہ ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، کیا رائے ہے ان کی. جو یہ بردرہڈ ہے، کشمیریت ہے، اس کو لے کے آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، اور بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہ ہمیں انویٹیشن آیا. تو اور یہ ٹاپک ہی بہت ہی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں بردرہڈ. تو کشمیر جو ہے ہمارا، یہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے پوری دنیا میں. ان میں سے ایک جیسے کہ ہمارا ایک خوبصورت وادی ہے، اسی طریقے سے ایک ہمارے اس خوبصورت وادی کے ساتھ ساتھ ہماری ایک پہچان ہے بھائی چارہ، جسے ہم بردرہڈ ہم یہاں پر کہتے ہیں، جو کہ کافی صدیوں سے چلے آ رہا ہے. بٹ بدقسمتی سے کچھ عرصہ ہو چکا ہے کہ ہمارے اس بھائی چارے کو نظر لگ چکی ہے، جس وجہ سے ہمارا نام تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے پوری دنیا میں. لیکن چونکہ میں یہاں پر رہتا ہوں اور میرے ساتھ میرے بہت سارے غیر مسلم جو میرے پنڈت بھائی، سکھ بھائی جو ساتھ میں رہتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھائی چارہ کہیں پر ابھی ختم ہوا ہے. وہ ابھی بھی برقرار ہے. بس کچھ بلیک شیپس ہے ہماری سوسائٹی میں جو ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے کشمیری پنڈتس ہیں جو ان کے ساتھ میرے فیملی ٹرمز ہے، جو ہمارے گھر آتے ہیں. اور بہت سارے ایسے کچھ فیملیز ہے، جیسے کہ میں ایک مثال دوں گا کہ ایک فیملی ہے، ان کا نام ہے رینا صاحب. تو ان کی جو مسز ہے وہ مجھے اپنا بیٹا مانتی ہیں، اور میں ان کو ایز اے مدر ان کو بولتا ہوں، ماں بول کے. تو مجھے کبھی بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ ایک کشمیری پنڈت ہے اور ہمارے بیچ میں کوئی مذہب کا کوئی بیریئر ہے، کیونکہ وہ اتنا پیار ہے، وہ سب چیز کو ڈائلیوٹ کر لیتا ہے. تو میرا ایک یہی میسج رہے گا کہ یہ جو پیار محبت ہے، اس چیز کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، اور یہ ہماری پہچان ہے. اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر آپ ایک معصوم انسان کو ماریں گے تو آپ پورے انسانیت کا قتل کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو بھی اس بربریات کو، جو یہ تشدد کو جو لوگ سپورٹ کر رہی ہے، جو اس کے پیچھے ہے، وہ کسی مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور میں یہ دعوی سے کہہ سکتا ہوں وہ مسلمان تو بالکل نہیں ہے کہ اگر وہ ایک معصوم انسان کو ماریں گے تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی اگر ہمارے میں سے کوئی ان لوگوں کو جسٹیفائی کرے. تو باقی یہ ہے کہ ہم کشمیری ہے، ہمارا یہاں پر پیار محبت کی جو ہماری پہچان ہے، اس آئیڈینٹی کو ہمیں آگے لے کے بڑھنا ہے. اور ہمارے ادھر جو کہ بہت سارے الگ الگ شعبے سے جو لوگ بیٹھے ہیں، اور ینگ جنریشن کے جتنے بھی ہمارے یوتھ ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اس چیز کو آگے لے، اور جو ہمارے اوپر داغ لگا ہے اس داغ کو ہم مٹائے، اور ہماری مثال جو بردرہڈ کی جو ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں یہ پھیلائی جائے. امن جو ہے، بھائی چارہ ہے، ہم کیسے وہ واپس لا سکتے ہیں؟ کیسے اپنے کشمیر کو خوشحال بنا سکتے ہیں؟ موسم کی خرابی کے باوجود ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک اچھے مقصد کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک اہم مدعا آج کل سامنے آیا ہے، جو کہ آئی کین سے کشمیری پنڈتوں کا ہے. تو سب سے پہلے جو ایک ٹیگ دیا گیا ہے ہمیں، یا ہم نے ایک دوسرے کو ٹیگ دیا گیا ہے، آئی کین سے ٹیگ دیا ہے کہ میں کشمیری پنڈت ہوں، میں کشمیری مسلمان ہوں، میں کشمیری سکھ ہوں، میں کشمیری عیسائی ہوں. سب سے پہلے اگر ہم اس ٹیگ کو ہٹا دیں تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی ایک انسان کی حیثیت سے کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک انسان ہیں، اس کے بعد ہمارا آئی کین سے تعلقات
وادی کشمیر سے ہے، اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کشمیری ہوں. ٹھیک ہے، تو جو یہ ایک ٹیگ دیا گیا ہے ہمیں، چاہے وہ کشمیری پنڈت کا ہے، ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے، اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ کے یہ دیکھنا ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر انسان ہے تو ایک انسان کا دوسرے انسان کی اور کیا فرض بنتا ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھ رہا ہے. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، اس کے گھر میں پینے کے لیے کچھ ہے، اس کے بچے بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں. تو اگر ہم سب سے پہلے ان سب چیزوں کا خیال رکھے، احترام کرے، تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے رہنے کے لیے. اس کے بعد ہم اپنے مذہب پہ آئیں گے. چاہے ہمیں کسی بھی مذہب پہ بات کرنی ہو، سب سے پہلے ہمیں ہر کوئی مذہب ایک ہی بات سکھاتا ہے، ایک ہی سبق سکھاتا ہے، وہ ہے انسانیت کا. انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں انسانیت پہ زور دینا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے، مجھے کیا ہر کسی کو پتا ہے کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ وائلنس کے اگینسٹ ہے، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ وائلنس کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ یہاں پہ اور ایک مہمان ہے، ہم ان کی رائے سنیں گے. سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کے حساب سے آپ کی طرف سے کیا میسج ہے کہ جو انسانیت ہے، سب سے پہلے جو ہے ہمیں انسانیت رکھنی ہے. تو آپ کا کیا پیغام ہے ہماری یوتھ، ہماری نئی جنریشن کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ابھی ہمارے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے انسانیت مقدم ہے. کلنگ کی بات ہوئی یہاں پہ، کلنگ کسی کی بھی ہو، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، پنڈت ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، یہ موت عیسائی یا ہندو یا مسلم کی نہیں ہوتی ہے، یہ موت آخر کار ایک انسان کی ہوتی ہے. اور دنیا میں جو سب سے مقدم چیز ہے جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ انسانیت ہے. جب ہم انسانیت پہ بات کرتے ہیں تو وہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا. کوئی ہم سے مدد مانگے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ پہلے ہم مذہب دیکھیں گے کہ اس کا مذہب کون ہے، کیا ہے. اگر ہم مذہب دیکھیں گے تو وہ انسان نہیں ہے. رہا معاملات ان لوگوں کا جن کی آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ ہلاک ہوئے، ان کو جن لوگوں نے بھی ہلاک کیا ہے وہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. کیونکہ ایک انسان کا خون بہانا پوری انسانیت کا خون بہانا ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. تو اس مدعے کو اگر ہم دیکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر ہم ریلیجس کا مطالعہ کریں گے یا جو ہمارے بڑے لوگ تھے ان کو پڑھیں گے، انہوں نے تو ہمیشہ ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے نا، جینے کا طریقہ سکھایا ہے. اور جو ہمارا یوتھ ہے جس کی آپ بات کریں کہ نیو جنریشن جو ہماری ہے وہ ان چیزوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا بنیادی مقصد، یہ وجہ ہے، ایک ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریلیجس کو دیکھتے نہیں ہیں. ہم سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے کہ نہیں یہی صحیح ہے وہ غلط ہے، یہاں تک کہ ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں. اور نتیجتاً ہمارا جو جوان ہے وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، وہ ینگ راستے پہ چلا غلط رانگ راستے پہ چلا جاتا ہے، اور اس کا مائنڈ سیٹ جو وہ آخرکار خراب ہو جاتا ہے. اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ڈرگ میں ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، ڈرگ کر رہے ہیں ہمارے بچے، تو نتیجہ کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی خراب ہوتی جا رہی ہے. اور ان بچوں کو صحیح راستے پہ لانا، ان کو صحیح راستہ دکھانا، یہ بھی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس کے لیے ہمارے ریلیجس لوگ ہیں، مساجد کے امام ہیں، وہ فرائیڈے کے دن سپیچ دیتے ہیں، پیس پہ سپیچ دیتے ہیں، انسانیت پہ سپیچ دیتے ہیں، امن پہ سپیچ دیتے ہیں، بھائی چارگی پہ سپیچ دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں تک لے جائیں تاکہ وہ ان کو انسانیت سکھائے، انسانیت کا درس دے. ہم بس وہی ٹی وی پہ جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہیں. اصل چیز اصل زندگی ہے اس کی طرف ہمارا جان نہیں جاتا ہے. اور میں صرف اتنا کہوں گا، ابھی بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں، ان کو بھی وقت دینا ہے، ان کے پاس بھی ابھی کچھ کہنے کو باقی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ بحثیت انسان ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو. اور بحثیت کشمیری ہماری مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے کہ ان کے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے. کشمیر کے لوگ بہت ہمدرد ہیں. اگر کبھی کبھار ان کو غصہ بھی آتا ہے کسی پر،
चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, लेकिन जब ये उसी दोस्त को उसी दुश्मन को किसी परेशानी में देखते हैं, किसी मुसीबत में देखते हैं, तो ये दौड़ के जाते उसकी मदद के लिए। काफ़ी अच्छे ख्याल हैं इनके कि एक इंसान का कत्ल मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल। बहुत दर्द होता है जब कोई भी अपना जो है वो किसी अपने को खोता है। तो यहाँ पे हमारे साथ प्लीज़ आप माइक पास कीजिए उनको, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही यंग है ये। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे, आपकी राय क्या है इस मुद्दे पे? जो नई जनरेशन है वो किस नज़रिए से इस चीज़ को देखती है? जो ये हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, जो आज का डिस्कशन है, वो बहुत एक अच्छा टॉपिक है। देख रहे हैं आज के टाइम में जो किलिंग्स हो रही हैं, जो यहाँ पे जो हालात ख़राब हो रहे हैं, उसको लेके जो हमने इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है कि वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव। बट कश्मीर में हमेशा ऐसा नहीं रहा है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसने पूरी दुनिया में एक पीस का माहौल क्रिएट किया है। इसकी एग्जाम्पल्स दी जाती है। कश्मीर का एक अच्छी हिस्ट्री रही है, रिच कल्चर है कश्मीर का। जो हमारा जो कश्मीर है, जो आजकल जो इसमें जो हालात हैं, उसको हमें देखना चाहिए हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, वजह क्या है इसकी, इसमें क्या रीजंस रहे हैं, और इन रीजंस को हमें इनको आउटकम करने की कोशिश करना है। ये जो हमारी मतलब किलिंग्स हो रहे, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हैं, मुस्लिम्स हैं, वो क्यों हो रही हैं, ऐसे क्यों हालात हो चुके हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब कश्मीर में हमेशा ऐसा होता रहा है या अभी रिसेंटली ऐसा कुछ स्टार्टिंग हुई है। हमारे कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो हमारे साथ रहे हैं। अब अगर लद्दाख में जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे मुस्लिम के साथ बुद्धिस्ट रह रहे हैं, बड़ी अच्छी तरीके से रह रहे हैं, पीस में रह रहे हैं। हमें इस जो आज के हालात उनको आउटकम करने के लिए हमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। इनिशिएटिव्स जैसे कि हमें एनकरेज करना पड़ेगा, इंटरफेथ डायलॉग्स को एनकरेज करना पड़ेगा। जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको साथ में बिठाना पड़ेगा। उनको मतलब हमारे जो यंग जनरेशन है उनको बताना पड़ेगा कि मतलब हमारा जो कल्चर है वो कैसा था, मतलब लोग कैसे रहा करते थे पहले। हम अपने जैसे घर में हमारे मैटरनल पेरेंट्स हैं उनसे हम सुनते हैं कि मतलब कश्मीरी पंडित हमारे साथ रहा करते थे। हम उनके जो मतलब फेस्टिवल्स हैं बाकी सब उनमें पार्टिसिपेट करते थे। जैसे यहाँ कुपवारा में एक जगह है टिकर, वहाँ मेला खीर भवानी होती है। वहाँ पे जो कश्मीरी मुस्लिम्स है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं वहाँ पर। जो ये हमारा कल्चर है वो हमेशा इनको इन चीज़ों को इनकरेज करता था। हमें देखना है कि इसमें क्या वजह हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे कश्मीर में। मतलब कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जाता है। सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी मुस्लिम्स को भी किलिंग हुई है। रिसेंटली कुनन में एक किलिंग हुई है, देखने में आया। हमें देखना है वजह क्या है। तो मुझे लगता है कि अब कश्मीर एक ऐसी जगह नहीं, पीस की प्लेस है। यहाँ पे हमेशा पीस रहा है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे एक पीसफुल माहौल रहा है। तो और अगर पीस की एक मिसाल ये भी देखी जाएगी, यहाँ पे कश्मीर में 4th काउंसिल बुद्धिस्ट काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी। वो एक वर्ल्ड को पीस मैसेज था कि कश्मीर एक पीसफुल जगह है। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग आए, उन्होंने अपनी काउंसिल की मीटिंग की। तो ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए। लोग मतलब डिफरेंट कम्युनिटी के जो हमारे लीडर्स हैं उनको बुलाना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि वो डिस्कस करें कि क्या वजह है, मतलब कश्मीरी पंडित यहाँ से माइग्रेट क्यों हो गए दूसरी जगह पर। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उन सब लोगों को डिस्कस करने का, ये डिस्कशन करने चाहिए वो लोग इशू क्या है यहाँ पे। तो इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि हमें ये जो टॉपिक है, हमें ऐसे डिस्कशंस रोज़ करने चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए कि कैसे लोग रहा करते थे और हम फिर से कैसे वो माहौल, वो खुशहाली वापस कैसे ला सकते हैं। यही क्वेश्चन हम हमारे साथ और एक जवान जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि हमारे कश्मीरियत और कश्मीर के बारे में बात हुई है, कश्मीरी सबसे ज़्यादा मशहूर अपनी कश्मीरियत और अपनी इंसानियत के लिए है। जितनी मोहब्बत दुनिया में कश्मीरी देता है उससे ज़्यादा कोई नहीं देता। आप किसी भी मुल्क में या किसी भी स्टेट में इंडिया में चले जाएं, उससे ज़्यादा आप कश्मीरियों से ज़्यादा आप किसी जगह ये नहीं देखेंगे कि एक मोहब्बत, एक हारमनी, एक पीस जैसी चीज़ नहीं होगी। अब मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। जो मेरा दोस्त है वो जम्मू से, वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, वो कश्मीरी थे। तो वो जब माइग्रेशन हुई उसके बाद उनके फादर जो आज भी मुझसे बात करते हैं, मुझे बोलते हैं कि मेरे दोस्त हुआ करते थे, हम घूमते थे, हम फिरते थे एक साथ, और मेजॉरिटी उनके दोस्त मुसलमान थे, वो हिंदू थे नहीं। तो इस चीज़ से वो हमेशा जब भी मेरे को ये चीज़ें बोला करते हैं या बोलते थे, तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कितना एक भाईचारा और कितनी मोहब्बत थी आपस में, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे। यहाँ पर हिंदू मुसलमान तो था नहीं, एक दूसरे से मतलब ये कश्मीरी बन के रहते थे। यहाँ पर कोई भी मतलब हिंदू गुजर जाए या मुसलमान गुजर जाए, एक आपस में एक दूसरे के चाहे शादियाँ हो या मौतें हो, उनके आपस में मिल के उनको हर चीज़ वो
हेल्प करना एक दूसरे की, वो चीज़ सबसे बड़ी इन मतलब कश्मीरियों में हुआ करती थी। और बाकी जो कश्मीर में हम जितना आज देखते हैं, यहाँ पर आज का जो यूथ है वो अवेयर है हर चीज़ का, मतलब हमें यहाँ पर कितना क्या हमारे साथ हो रहा है आजकल और क्या चीज़ें हो रही हैं अभी, तो हमें इस चीज़ के बारे में हम पूरा अवेयर हैं कि आज जो हो रहा है हमारे साथ, यहाँ जो किलिंग्स हो रही हैं या जो नाहक कत्ल हो रहे हैं, अल्लाह खुद फरमाते हैं, हदीस में है कि अल्लाह गुनाह कबीरा माना जाता है कि नाहक कत्ल करना, मतलब उन्हें कहा कि हम नाहक कत्ल करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो जो भी नाहक कत्ल हो रहे हैं यानी बेगुनाह इनोसेंट किलिंग हो रही, चाहे वो हिंदुओं की हो रही है या मुसलमानों की हो रही है, ये रोक दी जाए और इस पे सरकार को पूरा गौर करना चाहिए। इन्होंने इंसानियत की बात की, उन्होंने अवेयरनेस की बात की। हमारे साथ और एक स्कॉलर है, इनसे बात करते हैं कि इनका नज़रिया क्या है। आप सर बताइए, आपका नज़रिया क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है इस मुद्दे को लेके? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुला के अपनी बात रखने का मौका दिया। जहाँ तक हमारे इस टाइटल टॉपिक और जो हमारे टॉक्स का ताल्लुक़ है वो ये कि हैं ब्रदरहुड और कम्युनल हार्मनी पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमें ब्रदरहुड देखना हो, अगर हमें कम्युनल हार्मनी देखनी हो, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी एग्जांपल नहीं मिल सकती। हम कुपवाड़ा के तहगाम में अगर जाते, एक साइड से हमारी मस्जिद है, दूसरे साइड से हमारा गुरुद्वारा है और तीसरे साइड से हमारा मंदिर है। और एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल अगर हम अपने कम्युनल हार्मनी की बात करें, ब्रदरहुड की बात करें, वो मेरे लोलाब के चंडीगाम इलाके से है, जहाँ पे मंदिर के सामने एक आस्थान भी है। और लालपुरा के रंगवाड़ इलाके में एक हमारी जो हिंदू फैमिलीज़, पंडित फैमिलीज़ कई डिकेड से, कई सालों से वहाँ रह रही है। और अगर रिसेंटली हम बात करें कम्युनल हार्मनी की, ब्रदरहुड की, अगर कुपवाड़ा से बात करें, तो एक रिसेंटली एक हमारे पंडित जो बाई की एक पंडित लेडी थी, उसकी डेथ हो गई रिसेंटली। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, छोटों से लेके बड़ों तक, औरतों से लेके बच्चों तक, बूढ़ों से लेके बुजुर्ग तक, जब जो ही उन्होंने उनके जहन में, उनके कानों में ये बात आ गई कि फलानी लेडी की डेथ हो गई, मुझे लगता है सारे दौड़ के चले आए। और जब तक ना उनका अंतिम संस्कार हुआ, जब तक ना उनकी जो भी रिलीजियस जो भी उनका होता है, जब तक ना उनको बोल कर दिया गया, तब तक वो सारे लोग वहीं पे बैठे थे। और बात रही आपके जो किलिंग के हवाले से आप बात कर रहे थे, किलिंग जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो कुलगाम के इलाके से हो, हमारे कुपवाड़ा के इलाके से हो, पुलवामा के इलाके से हो या अनंतनाग के इलाके से हो, इस पे हमारे जो पैसेंजर ऑफ पीस है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है कि जहाँ कहीं भी एक इनोसेंट, एक बेगुनाह का कत्ल हो, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस पर मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको जिंदा रहना है तो दिलों में रहिए। और दिलों में वही इंसान रहते हैं जो अमन का पैगाम लेके जाते हैं, जो ब्रदरहुड का पैगाम लेके जाते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो यूनिटी का पैगाम लेके जाते हैं, जो पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बोलते हैं। मुझे लगता है हमें सबको चाहिए कि हम हर एक के दिल में ही हमें रहना चाहिए। बाकी उसे बहुत अच्छी बात इनने कही कि लोलाब में ये लोग अभी भी कैसे अमन और इत्तेहाद से रह रहे हैं। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो कश्मीर में जो है ब्रदरहुड का बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी मैसेज देती है कि कैसे अभी भी लोग बहुत इत्तेहाद से रह रहे हैं। आप जो हमारे साथ है ये सर है, सर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने विटनेस किया हो, कोई भी एग्जाम्पल ऑफ ब्रदरहुड बीट इन कश्मीर और आउटसाइड कश्मीर? जी, आपने बहुत प्यारा सवाल किया है कि प्री 90s में यहाँ पर किस तरीके से जो पंडित और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी किस तरह रहती थी। मैं जहाँ तक मतलब जब ये प्री 90 की आप बात कर रहे हैं, मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम पर, तो शायद मैं उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाया। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने घर से, अपने पेरेंट्स से जो सुना है कि यहाँ पर इतना अमन, इतना प्यार मोहब्बत होता था कि मतलब कि हमें नहीं लगता था कि हम एक पंडित और मुस्लिम के बीच में कोई भी डिफरेंसेस है। हम उनके त्यौहार मनाते थे, हर जिसको आप शिवरात्रि मतलब वो हम उसमें शामिल होते थे, उनकी शादियों में हम शुमलत करते थे और वो हमारी बहुत सारे ईद पर आते थे हमारे घर पे, हमें ग्रीटिंग्स करते थे। और फिर जो आप कह रहे हैं कि जो 90s के बाद जो अब जो नई जनरेशन है, इसके बीच में एक थोड़ी सी गैप बन गई है, क्योंकि ये जो
जो अब की जो जनरेशन है, जो पंडित भाइयों की जो मतलब इनकी जो कम्युनिटी की जो अभी नई जनरेशन है, ये बाहर पढ़े थे, इन्होंने बाहर अपनी मतलब स्टडीज और एक डिसएसोसिएट हो गए हैं कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी से, जो कि एक मैं कहता हूँ कि हम एक ही मतलब माँ के बेटे हैं, दो करवट बदल के लेटे हैं, एक किस्म की मैं बात कहूँगा। और इस चीज़ को जो ये बैरियर है, इस चीज़ को हमें कम करना है। और मैं चाहता हूँ कि हम अपने इन भाइयों को इनवाइट करें हमारे इस वापस अपने उनकी जो मदरलैंड है, और हम एक मिसाल बने, और ताकि कि और भी जितने हमारे भाई हैं जिनके दिलों में हमारे बीच में नफरत नहीं है इनके लिए, वो गैप हमारे बीच में ख़त्म हो जाए, और जो दिल में जो दूरियां हैं वो इसी तरीके से कम होगी अगर हम आपस में मेल मिलाप और आपस में मिलजुल के मतलब एक दूसरे के साथ दोबारा जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्ट्रल जिस तरह रहते थे, हम उस चीज़ को वापस रिवाइव करें। तो मैं चाहता हूं कि ये हम ही कर सकते हैं और हमें इस पे ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। जो सर है इनने काफ़ी खूबसूरत बातें कही। इनका कहना है कि ये लोग फिर चाहते हैं कि फिर से वो प्री 90s का दौर जो है वो फिर से वापस आए, लोग खुशहाली के साथ रहे, कैसे बिना डर के यहाँ लोग रहते थे, वो दौर जो है ये सब लोग जितने भी मौजूद है ये चाहते हैं कि वो दौर फिर से आए। अब हमारे साथ जो है, हमारे साथ एक यंग जर्नलिस्ट जुड़ी है जिनका नाम है वजीहा। वजीहा, हम आपसे पूछेंगे कि आप एज अ जर्नलिस्ट, आप एज अ यंगस्टर कैसे इन चीज़ों को देखती है, या आप बाहर भी काफ़ी ट्रैवल करती होंगी, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ये जो मौजूदा हालात यहाँ है, इनका उन पे क्या, उनके विजन पे क्या असर पड़ता है? अगरचे मैं अपनी बात करूं तो मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया है, और इस वजह से यानी कि जो ये भेदभाव है, यानी कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, मेरे भाई ने यहाँ पे एक बात कही कि ये जो आइडेंटिटी होती है, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी या कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी सिख, तो इस वजह से जो क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, पहले तो वो चीज़ है, हमें हर इंसान को इंसानियत के तराजू में तोलना चाहिए, और वही एक इंसान होने की निशानी भी है। मैंने काफ़ी बाहर भी ट्रैवल किया है, जिसकी वजह से यानी कि यहाँ की सूरत हाल जो है, यहाँ की बदतरीन सूरत हाल आए दिन, जैसा कि इन्होंने अनीसा ने भी कहा कि कल ही एक किलिंग हुई, उनकी डेड बॉडी आज सुबह मिली, और उससे पहले कश्मीरी पंडितों की, यानी कि यहाँ सिर्फ कश्मीरी पंडितों का खून ही नहीं बहता है, मुसलमानों का भी बहता है। तो ये चीज़ कहना कि सिर्फ कश्मीरियों का बहता है या पंडितों का बहता है, इंसान का बहता है। यहाँ पे हमारे एक और भाई भी थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो एक इंसान को अगर कत्ल किया जाए, हमारे मजहब इस्लाम में अगर एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाता है, और अगर एक इंसान को बचाया जाए तो तमाम इंसानियत को बचाने का वो मुतरादिफ होता है। तो कहने का गर्ज ये है कि कश्मीर के सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हमें ऐसे प्रोग्राम आए रोज जो है मुनाकिद करने चाहिए, और हम सबको मिलजुल कर बैठना चाहिए। हमें पंडित बिरादरी के लोग, सिख बिरादरी के लोग, तमाम लोगों से एकजुट होकर उनसे मिलना जुलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और हमें हमारी जो अपनी यानी कि आज़ादी है बात करने की, वो हमें बोलने दिया जाना चाहिए। आज ये प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर अपनी यानी कि अपनी बात को मुझे सामने रखने का मौका मिला है। यूँ तो मैं लोगों की बातें जो है वो सामने रखती हूँ, आज मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी। मैं माउंटेनियरिंग कोर्स करने के लिए दार्जिलिंग गई थी, तो मैं वहाँ काफ़ी अरसा रही, लेकिन वहाँ लोग जो है मुझे शक की निगाह से देखते थे। कि 2014 की बात है, तब मेरी कोई जर्नलिज्म की डिग्री नहीं थी, तब मैं एक यानी बैचलर्स कर रही थी, और साथ में मेरा शौक था काफ़ी माउंटेनिंग का। तो वहाँ जितने भी लोग आए थे तो सब लोग मुझे बड़ी शक की नज़र से देख रहे थे, हत्ता कि लोग ये भी कह रहे थे कि शायद ये यहाँ से ये रूट्स वगैरह देखने के लिए आई है, और शायद ये कोई स्पाई है या कोई एजेंट है। तो उस तरीके से तो सब लोग मुझे पूछते थे, आप कश्मीर से हैं, वहाँ हालात ऐसे होते हैं। तो इससे अनीसा ने मुझसे एक और सवाल पूछा कि जो लोग यहाँ से बाहर की रियासतों में यानी कि हमारे मुल्क की बाकी रियासतों में जो हैं पढ़ते हैं, तो उनको काफ़ी इस चीज़ का भुगतना पड़ता है, जो कि मैंने खुद भुगता। यानी कि मैं गई और मुझे कहा कि वहाँ पे ये हालात हैं, वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, तो इससे उन पे बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें
अच्छी जो है यानी कि हमें खुशहाली की बात करनी चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, हमें यानी कि वो शर पसंद अनासिर जो हैं उनको हराने की तरफ जाना चाहिए, ना कि उनको बढ़ावा देने की तरफ जाना चाहिए। कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि आप लोग किसी का कत्ल कर दो या किसी को मारो। ये बस सिर्फ हमारी नॉलेज जो है वो कम है, लैक ऑफ नॉलेज है, हमें इल्म नहीं पता, हम पढ़ते नहीं है, खुद मुताला नहीं करते, खुद जानते नहीं है कि कैसे क्या करना है। अगर हम खुद मुताला करें तो हमें ये पता चलेगा कि कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी का कत्ल किया जाए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, और तमाम लोगों से कहने का मकसद सिर्फ ये है, और तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म की मदद से कि तमाम लोग जो हैं इस चीज में जो है जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस बारे में बात की जाए, यानी कि पंडित जो बिरादरी है उनके लिए अच्छा करने की कोशिश की जाए और ऐसे ख्यालात जो हैं वो अपने जाहिर किए जाए और फिर बाद में उनको अमली जामा पहना। वजीहा ने एक बात कही कि जो एज अ कश्मीरी जब ये बाहर गई तो लोग जो है वो इन्हें काफ़ी शक की निगाह से देख रहे थे। तो वजीहा हम आप ही से पूछते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे लोगों का जो है नैरेटिव चेंज हो जाए हमारी ओर? मीडिया जो होता है यानी कि मास मीडिया, वो हमारी सोसाइटी का एक आईना होता है, उसे वॉच डॉग कहा जाता है और साथ ही साथ डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी माना जाता है। तो ये मीडिया का काम है। अगर हम देखें तो जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो काफी जो है जहर उगलते हैं। हम जब देखते हैं टीवी तो बहुत ऐसा लगता है कि काफी ऐसी हेट फैलाई जाती है, हेट मॉन्गरिंग होती है। तो उस हेट मॉन्गरिंग से रोका जाना चाहिए, पॉजिटिविटी को दिखाना चाहिए। जैसे कि मैंने खुद भी रिपोर्ट किया है, कई सारे ऐसे मंदिर हैं यहाँ यानी कि जिनको जो कश्मीरी पंडितों के थे और उन्हें अभी मुस्लिम बाई जो है वो चला रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं। गांदरबल में एक ऐसी मिसाल मिलती है। या अगर हमारी पंडित बरादरी का कोई शख्स जो है उनका इंतकाल हो जाता है तो उसमें भी हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो पहले रहते हैं कि कब हम इनके तमाम तर इंतजामात करें। या मेला खीर भवानी हमारे यहाँ होता है, उसमें भी हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो पेश रहते हैं। तो हमारी मीडिया को चाहिए, और जैसे ये प्लेटफॉर्म है ऐसे ही बाकी भी प्लेटफॉर्म जो हैं वो भी सामने आने चाहिए। उन प्लेटफॉर्मों के जरिए लोगों की बात जो है, जो पॉजिटिविटी है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए। और अगर हम देखें तो नेगेटिविटी जो है यानी मनफी जो सोच है, जब एक मनफी सोच किसी की जाहिर हो जाती है तो उससे और मनफी जो ये ख्यालात लोगों के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो अगर हम पॉजिटिविटी को यानी कि मुस्बत सोच को फैलाएंगे, मेरे ख्याल से जो बाहर के लोग हैं उनकी समझ में भी आएगा कि कश्मीर में सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं रहते, फकत हर सोसाइटी में, हर समाज में कुछ शर पसंद अनासिर तो जरूर होते हैं। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती जहाँ पे सब ऐसे यानी कि सब गलत ही हो। मेरा यही कहना है कि मास मीडिया के जरिए और ऐसे ही प्रोग्राम करा के हमें जो है इस चीज को यकीनी बनाना चाहिए ताकि जो हमारे साथ ये चीजें जो है फ्यूचर में ना हो। वजीहा ने जो है एक अच्छी बात कही कि जो मास मीडिया है उसका एक बहुत अहम रोल है कि वो पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को आगे लेके आए। क्योंकि ये बात भी सच है कि यहाँ कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंडित्स वो मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे की त्योहारों में जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ दावतों पे जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है उनको हाईलाइट करें। सर हमारे साथ और एक सर है, इनसे भी राय लेंगे। सर आपको क्या लगता है, आपका नजरिया क्या है इस मुद्दे को लेके? मेरा नाम सईद अतहर परवेज है। मैं आवाज़ द वॉइस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। मैं कलामी महजूर से शुरू करना चाहूँगा। दोद छु मुस्लिम ह्युन छु शक्कर साफ साफ, दोद शक्कर रलयू पानवे। जैसे कि अभी तक मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये फरमाया कि किलिंग, वायलेंस, ये जो है ये सारी इंसानियत का कत्ल है। हम हर किलिंग का, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, उसका
बड़े कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। आज मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है, मुस्लिम खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का रहने वाला हूँ। वायलेंस ने मेरा सारा कुछ ख़त्म कर दिया। तब से आज तक मैं भी दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन हमारी हुकूमत पे ये फ़र्ज़ ऐन आयद होता है कि वो कम से कम जितने भी लोग वायलेंस के शिकार हुए, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, सिख्स है, मुस्लिम्स है, बौद्ध है, जैन है, हुसोएवर इस जो भी इस बला से मुतासिर हुए, उनको बाजियाब करने की सोचनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये फ़र्ज़ ऐन आयद होता है कि वो ऐसे लोगों को पहले एक्नॉलेज तो करें। मैं आपको पहले एक ब्रदरहुड की बात का किस्सा सुनाना चाहूँगा। तकरीबन 15 साल हुए 2009 में मैं अपनी बहन के साथ, जिनका ऑपरेशन था एम्स में, एक छोटा सा बच्चा लेके हम यूसुफ सराय में रह रहे थे। तो अचानक किसी कश्मीरी पंडित ने, जिनका नाम प्रदीप पंडिता है, केवल कृष्ण पंडिता है, गिरधारी लाल है, एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं कभी उनका नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने जब कश्मीरी समझ के हमें पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने उनको बताया कि मेरी बहन का ऑपरेशन एम्स में हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ ठहरे हुए हैं यूसुफ सराय के एक होटल में, जहाँ मुझे उस वक्त 15 साल पहले 900 रुपये एक कमरे का देना पड़ता था। उन पंडित भाइयों ने मुझे अपने साथ घर लिया। वहाँ वो उनकी बीवियाँ और उनकी बेटियाँ जिन्होंने हमें देखा, तो उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, हमें लगा कि हम शायद घर आ गए। तो फिर चूँकि उन दिनों इलाज बहुत महंगा था, इलाज के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मेरे उन बहनों ने, उन पंडित घराने से ताल्लुक़ रखने वाली उनकी बीवियाँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, और जहाँ भी मुझे चलेगा तो इंशाअल्लाह हम उसके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। पहले मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूँगा, जो भी मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे विरासत मिली है, मैं अपना आधा विरासत उनके नाम कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना समझ के, क्योंकि उन्होंने वहाँ नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, इन्होंने वहाँ कश्मीर में क्योंकि शूरिश थी, शूरिश से वो बेचारे भागे हुए थे, उन पे बहुत सारी मुश्किलात वहाँ तारी थी, तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। इवन कि जितना भी खर्चा मुझे वहाँ लगा, 6 महीने तक मैं उनके घर में रहा। बहुत अच्छी बात कही इनने, शीन पे शीन गले बेई बहार, दैट मीन्स द विंटर विल एंड एंड द स्प्रिंग इज कमिंग। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए, अपनी खूबसूरत ओपिनियंस से हमें नवाजा। हम कोशिश करेंगे कि इन ओपिनियंस को, आपकी जो राय है, उन्हें अमली जामा पहनाया जाए। तो कंक्लूड करने से पहले मैं अपने जो हमारे जो नेशन के लीडर है महात्मा गांधी जी, आई वुड लाइक टू कोट हिम, I object to the violence because when it appears to do good, the good is only temporary, the evil it does is permanent. बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हम फिर से एक नए मुद्दे के साथ आप सबसे जुड़ेंगे। शुक्रिया।